Guys, welcome to another video of Asha Singh. So, in the last video, I told you that I'm going to tell you what happened during my maths board examination. So, here is the story time. So, I'm going to tell you what happened and why my exam was not very well. And even the CBSE have given a very nice gap. So, why I didn't study very well and was not able to give a very nice exam. So, I want to talk about one more thing. That is now I have given this year my board examination, so I'm going to appear in 11th grade. And in the upcoming videos, I'm going to tell you which stream I'm going to choose, and am I going to, in a dummy school, or I'm going to do a regular schooling. Many of my friends have already gone some of the coachings because they are going to a dummy school, so they are uh, already gone to some coachings and confused ones. I've not decided what to do, but most probably. Okay, no, I'm not going to talk in this video. Now, let me talk about the topic I have made this video about. So, my maths board examination. So, let it started from Hindi board examination. So, on 28th of February was my, not only my, all the 10th graders, Hindi board examination was there, and everyone will relate to me that the CBSE have not given the good gap in the Hindi, except every subject the gap was good except Hindi. 8th was Hindi board examination. On 1st of March was my Didi's marriage, and I have to go there. And my Didi's marriage was in different city, so we have to go there. We were planning like after I will give my exam, we will home and then we will go there. And after 2 3 days, we will come and I will study. Plan was like this, but something else happened. Okay, what happened? I was very nervous during my हिंदी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्यों नर्वस थे बहुत लोग सोचेंगे लाइक ऑन डे बिफोर आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द सिलेबस एंड ऑल बट फाइनल रिविजन कर रही थी बट माई मूड वॉज नॉट वेरी गुड बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस लाइक मैंने गैप कम था इतनी रिविजन हुआ नहीं था एंड आई वॉज वेरी नर्वस आई फीलिंग लाइक क्या भूल तो नहीं जाऊंगी सब होता है ना कि लाइक जब तुम कम रिवाइज करते हो तो मैं से होता है एंड आई फेल्ट वेरी सैड आई क्राइड बट ओके ओके फिर मैंने ठीक है मैं सुबह उठी मैंने लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी मेरा माइंड पता नहीं शादी में जाना था इसलिए डिस्ट्रैक्ट पता नहीं क्या हो रहा था बट ठीक है बट आई गिवन द एग्जाम बट आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज द टाइम प्रॉपरली बट हाँ मेरा लास्ट मोमेंट पे हो गया था पेपर हाँ सही था मतलब ठीक था मैं उस सारे सब्जेक्ट्स के लिए ना मेरा कैसा हुआ उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी बट इन दिस वीडियो आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट मैथ्स सो उसमें इतना डिटेल में नहीं जाता हिंदी के लिए शादी थी तो ऑन 28th को संगीत एंड फर्स्ट को शादी थी and on second we were very tired so we didn't came back home and on third maybe yeah huh, on 3rd of March I got fever on there only and so that is I we then came back and on 4th we came back and I was very tired and all 5th I didn't study it properly because of that tiredness. On 6th I started studying math. I started with the NCRT. I didn't take any of the marathons that Shobit Bhaiya and everyone, Ritik sir and everyone was taking. Mainly Shobit Bhaiya की देखती हूँ but मैंने नहीं देखी marathons वगैरह में. I focused on NCRT because when I was basic maths से था थॉट कि NCRT पे फोकस करते हैं क्योंकि टाइम भी कम बचा है. 6th 7th 8th मैंने करा. आई गेस 8th हाँ मैं ना 9th of March डे बिफोर आई वेकड अप वेरी अर्ली एंड कम्प्लीटेड द रेस्ट 3 चैप्टर्स मेरे जो बच रहे थे सुबह सुबह वाले टाइम में कंप्लीट कर लिए थे. आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब रिविजन करेंगे एंड लाइक मेरे साथ क्या हैविंग माई लंच एंड आई फेल्ट लाइक इतना मेरे कोल्ड हो गया था इतना लाइक मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही थी. आई टुक द मेडिसिन आई स्लीप फॉर 2 hours लाइक 2 3 hours आई टेक स्लीप इन द आफ्टरनून लाइक मेरा जो पूरा आफ्टरनून वाला टाइम था वो तो लाइक उसी में चला गया. लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एज वेल एज मैं एक तो एग्ज़ाम के लिए नर्वस थी हेल्थ इश्यूज़ आ गए. ओके सो उस वजह से आई वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल इन द फिर इवनिंग में मैंने CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर किया. थोड़े से भी बाईक्यूज मैंने इसमें से स्टार्टिंग में देखा कि CBSE का लेवल क्या है बेसिक के पेपर के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मैं उन्हें आंसर कर पा रही हूँ. मैंने थोड़ा बहुत ही देखा था सैम्पल पेपर. आई वॉज नॉट एबल टू डू एंड ओके आई आई स्लिप्ड एट 12 o'clock on डे बिफोर माई एग्ज़ाम एंड मैं सो भी नहीं पा रही थी. आई वॉज फीलिंग सो लाइक नर्वस थी मैं बिकॉज मैथ्स एंड मी वॉज लाइक चाइल्डहुड से मेरा हमेशा स्कोर किसने गिराया है मैथ्स ने. चाइल्डहुड से मैं कौन सा सब्जेक्ट में हमेशा वीक रही हूँ मैथ्स में. मैंने हमेशा किसका ट्यूशन किया है मैथ्स का. मैथ्स लाइक ऐसा नहीं है मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी नहीं मैंने नहीं करी लाइक
आई वॉज रिपीटिंग द मिस्टेक एवरी ईयर। लाइक चाइल्डहुड में इतना नहीं हो रहा था, लेकिन नाइन्थ में तो हो गया था। नाइन्थ में आते आते मेरी मैथ इतनी ख़राब थी, ऐसा नहीं था इतनी भी ख़राब थी, लेकिन हाँ नहीं इतनी अच्छी मैथ नहीं थी। आई वॉज एन एवरेज इन मैथ्स। और जब ज़्यादा होता है ना, मैथ्स कर देती हूँ मैं, तब तो बिल्कुल ही हो जाता है। ओके, सो लीव इट डैट, वो तो एक पुरानी कहानी है। इसलिए मैथ्स तो मैं कभी नहीं लूँगी 11th पे। मैथ्स को तो मैं अपनी ज़िंदगी से नहीं हटा सकती, बिकॉज इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन नॉट इन मैनी, मोस्ट ऑफ द मैथ्स तो चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मेरी बिल्कुल ही ख़राब है, बेसिक मैथ्स तो आती है। 2 + 2 4 आती है। इतना लेम था ये। ठीक है। तो वो ना, मैं 4 बजे उठ गई क्योंकि शोभित भैया की क्लास थी। और मेरा इतना मतलब सुबह सुबह मूड खराब हो गया। आई टर्न ऑन द लैपटॉप, क्लास देखते हैं। एंड भाई पता नहीं उसमें, पता नहीं क्या चल भी नहीं रहा, वो चल भी नहीं रहा। क्लास ऑन हो गई थी, फिर आई टुक द मोबाइल फ़ोन एंड यूट्यूब, एंड देन आई टुक द क्लास। 6 बजे तक शायद क्लास ख़त्म हो गई थी। ओके, सो फिर क्लास ख़त्म हो गई थी एंड आई वाज फीलिंग सो बैड, लाइक हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और नर्वसनेस इतनी नहीं थी, क्योंकि क्लास अच्छी थी, शोभित मैंने अच्छे से बताया सब कुछ। तो मैंने सोचा था वो पीडीएफ जो उन्होंने दिया ना, उसको रिवाइज़ कर लेंगे, फॉर्मूलाज को रिवाइज़ कर लेंगे। बट मैं 1 डेढ़ घंटे सो गई। मैं 6 से 7:30 आई गेस सो गई थी। एंड देन फिर मैं उठी। उसके बाद मैंने लाइक 7:30 तक मैं सोई। उसके बाद मैं लाइक ना 8:30 तक मैंने वो पीडीएफ जो शोभित भैया ने दी थी, उसे अच्छे से कर ली, फॉर्मूलाज वगैरह देख ली, मेनली सब कुछ देख लिया था। आई वाज कॉन्फिडेंट। लाइक फिर मैंने 9 बजे तक मैं रेडी हो गई, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा ली, सब कुछ ऐसा लाइक रेडी हो गई, फॉर्मूलाज थोड़े देख लिए। फिर 9:30 तक आई लिव फॉर द सेंटर। बट द थिंग इज़ कि उसी दिन ट्रैफिक हो गया। सो वी वर अ बिट लेट। वाज विद वन ऑफ माय फ्रेंड एंड वी दिन ना, लाइक किसी दिन इन लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं किया, उस स्कूल वालों ने, और उसी दिन सीटिंग अरेंजमेंट भी चेंज कर लिया और मुझे ना फर्स्ट रो में लगा बिठा दिया। सबसे पहले शीट कलेक्ट करने में मेरे पास ही आएंगे। मतलब देख रहे हो मेरी किस्मत उस दिन। चलो ठीक है, किस्मत की बात नहीं करेंगे, हमने मेहनत करी थी, किस्मत को हम ऐड नहीं करेंगे, मेहनत मोटिवेशनल। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे आया था, हाँ मेरे सेट 3 आया था। दिस इज़ माई पेपर। MCQs were good, but I took 1 hour in doing the MCQs. Then यार मैं उधर सेक्शन डी था भाई ना, टाइम बहुत कम बचा था। मैं किसी भी क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट इतना नहीं आ रहा था मुझे। और भाई ये जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आया था, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही नहीं, फ्रेंड का शायद सेट 2 था, उसमें एनसीईआरटी का आया था। लाइक आई गेस आया था। मेरे को एनसीईआरटी का दे दे, वो तो मैं अच्छे से करी गई थी, वो दिया नहीं। मेरे को किसी भी ना क्वेश्चन का मैंने ना ही आंसर देखे आके, और ना ही मैंने उस टाइम रीचेक करा, क्योंकि मुझे रीचेक का टाइम ही नहीं मिला, पेपर ही नहीं हो रहा था मेरा कंप्लीट। ड्राफ्ट के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, बाद में करेंगे बाद में। मैं केस पेज पे आई एंड केस पेज छोड़, लाइक इससे गंदे मैंने केस पेज भी नहीं देखे आज तक। एसएसटी में देखो कितने प्यारे केस पेज थे, दिया ये क्या है, ये क्या है ये। तो केस पेज अच्छे नहीं थे, और ये लास्ट वाला तो मैंने करके छोड़ दिया, जो मेरा ग्राफ रह रहा था, टाइम खत्म होने वाला था, 5 मिनट बच रही थी, तो मैंने ग्राफ करने में बैठी। उसमें भी मुझे एक लगी थी एक्स वाई की, एक वैल्यू आई नहीं थी एक्स और वाई की। तो फिर उसमें मेरा, फिर मैम आ गई कलेक्ट करने, क्योंकि टाइम हो गया था ख़त्म। और फिर मैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू करके कुछ भी ग्राफ में कुछ भी करे आई, उन्हें शीट ले ली। एंड एट दैट टाइम आई कीप दिस पेपर ऑन द टेबल, आई टुक ऑफ माई ग्लासेस, कीप इट ऑन द टेबल। आई डिडंट क्राई, बट आई वॉज हैप्पी बिकॉज पेपर खत्म हो गए थे, नाउ आई कुड रिलैक्स। And I took off the glasses, kept it on the table, and then I closed my eyes and I was like, okay, you did it well. तुमने अपने बेस्ट किया. I told my father that because I was not able to manage the time, some of the question were left. Maybe मैंने कुछ quadratic question बना के छोड़ दिए थे. Recheck तो मैंने करा ही नहीं. And then when I went home, maths का ही उन्हें टेंशन था. maths में तो gap मिला, but I was not able to do. शादी, हेल्थ इश्यूज सब एक साथ आ जाते हैं मेरी लाइफ में. बट ठीक है, ओके, समवेयर इट वाज माय फॉल्ट. ओके ठीक है, तो फिर माय पेरेंट्स एंड वी वर बिट डिस्कशन हुआ था. उसके बाद मैंने टीवी देखा और मैं मतलब रिलैक्स हो गई. एंड अभी 16 डेज हो गए हैं, लाइक टुडे इज 26 और 16 डेज हो गए हैं. आई एम वॉचिंग मूवीज, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट शो, पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, इंजॉइंग. ब्लैक स्क्रीन टाइम पे स्क्रीन टाइम, मेरा स्क्रीन टाइम इतना हो चुका है. बट आई एम डूइंग इट बिकॉज मुझे पता है 11th ग्रेड स्टार्ट होने का. मे बी मैं इस टाइम को मिस करूँगी, क्योंकि अभी मैं इतनी फ्री हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है. इसलिए मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करके मैं सोचा कि वीडियो बना लेते हैं. बस कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कर रही थी. स्क्रिप्ट नहीं बनाई आज मैंने, जो मेरे मुंह में आ रहा है बोल रही हूँ. मतलब जेनवनली जो भी हुआ था मैंने बताया.
दिस हैपन ड्यूरिंग माई मैथ्स एग्ज़ाम। आई डोंट नो कि आप लोग इन्जॉय भी कर रहे हो क्या, मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी, तो इंटरेस्टिंग तो नहीं, मतलब मैं बताना चाहती थी क्या हुआ था एक्चुअली, क्यों मैं इन्हें नहीं कर पाई, बुक्स खरीदी पर मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाई। बुरा तो लगता है यार गाइस। मैं और भी 10th ग्रेडर्स के लिए वीडियोस बनाऊंगी, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, सब सब्जेक्ट के लिए सेपरेट टिप्स, एंड आई विल बी इन योर 10th जर्नी विद यू गाइस। लाइक और भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मुझे पता है कौन मेरी वीडियो देख के टिप्स देखेगा, बट जिसने 10th ग्रेड दे दिए है उससे अगर तुम टिप्स लेते हो तो उसमें कोई खराबी भी नहीं है, बट ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन सी। एंड माई वीडियो, नॉट माई वीडियोज, एवरी क्रिएटर्स वीडियो टुक अफर्ट्स। सो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड आई नो वीडियो को लाइक करो। वीडियो जो लास्ट आ रही है उनमें भी 7-8 व्यू आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस को वापस गेन नहीं करने में मुझे टाइम लगेगा। जो ऑडियंस मेरा मेरे चैनल अभी तक इतना ग्रो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैं क्विट कर देती हूँ, एंड दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू क्विट इट। तुम वीडियो देखो नहीं देखो, मैं तो डाल रही हूँ ठीक है, क्विट नहीं करती। तो मेरी जो ऑडियंस है जो जा चुकी है उसको मुझे वापस बुलाने के लिए वीडियो, लाइक ठीक है ना, मुझे अपना ऑडियंस को वापस गेन करना पड़ेगा, एंड इट विल टुक हार्ड वर्क, आई नो। बट अगर आप लोग मेरा हार्ड वर्क देख रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट फैमिली। ओके, सो दैट इज़ फॉर द वीडियो। एंड मैं और भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या हुआ, मतलब ऐसे कोई सेपरेट स्टोरी नहीं है इसकी, प्लीज़ मैंने वीडियो बना ली। एंड दिस वॉज द पेपर, मैंने अभी तक संभाल के पता नहीं क्यों रखा है इसको, ये वीडियो बनाने के लिए। मेरे पास कोई क्लिप्स वगैरह नहीं है जो मैंने रिकॉर्ड करी उस टाइम पे, बट ठीक है मैं भी ऐसे वर्बली बता देती हूँ ऑल दिस बुक्स, क्योंकि मैथ्स तो भाई मैं अपनी लाइफ से कम्प्लीटली तो नहीं हटा सकती हूँ, बट मैं जितना कर सकती हूँ उतना तो हटा ही दूँगी। ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए, अब तो कर दिया, ठीक है। ओके, सो डैट इज़ फॉर द वीडियो। और इफ़ नहीं नहीं यार, मैंने पहले ही कह दिया लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने, अब नहीं बोलूँगी, ठीक है। आदत हो गई वो लास्ट में वीडियो के बोलने की। सो डैट इज़ फॉर द वीडियो, स्टे ट्यून फॉर सच अमेजिंग वीडियोज़। अच्छे से नहीं आई ना आज, बाय बाय।